Hello, good afternoon, everyone. Uh, Today we are going for the understanding of simplification of SOP expressions using KMAP. Just reviewing about the last lecture, just we have seen about the rules, okay, of for KMAP simplifications. Okay, I have given you this sort of rules. According to these rules, okay, you need to pair, okay, or chord or octet, okay. So you need to do grouping of a pair, chord or octet, okay. Similarly, if there is any ones left without groups, you must do as a encircle. While grouping, it may be remembered that overlapping of group is allowed, that is, two or more groups can have one or more ones in common. Redundancy is not allowed, that is, a group whose ones are overlapped by other groups. For simplifying SOP equations, group should include only cell containing ones for POS and zeros for SOPs. Okay. For SOP there is ones, and for zeros it should be zeros, right? Groups can be horizontal or vertical but not diagonal. So diagonal group are not entertained. Group should be large as possible. Group can be wrapped around the table. Yeah, I have given you the rules as well as graphically I shown you many examples like pair, a chord as well as octet, okay, as well as these are the overlapping lapping is not allowed, okay. So these are examples, okay. So here where you can see overlapping is not allowed. Now uh, today we are going to learn about the simplification for SOP expressions using KMAP, right? So again, I am just giving you these rules. Okay, you need to follow these rules for solving examples. Okay, draw the KMAP. First one is draw the KMAP. Okay, depending on the number of variable and equations with n variable will require a KMAP with 2 raised to n cell. Okay, so if there are three variable, okay, example KMAP has 2 raised to 3 means 8 cell will be there. For 4 variable KMAP, it has near about 2 raised to 4 means 16 cells will be there. Second point is plot the KMAP from the truth table, okay, or the SOP equations. The min term presents are represented by 1 in the KMAP cell. Do grouping of ones, try to form a larger group to eliminate maximum variable, okay. Till now I shown you everything, okay. And fourth one is circle the one which cannot be accommodated in any group and consider the corresponding min term in the final simplified output expression, right? So all 3 points that I already shown you how to draw the KMAP, okay, how to find how many number of variables are given in your example problem, okay, according to which KMAP you want to select. So I given you example of 2 variable, 3 variable, 4 variable KMAP. Similarly, I also given you idea about the plot of the KMAP from the truth table as well as SOP equations, how you can group ones, okay. And there are many examples that I have given in the last lectures, like for two ones or 4 ones or 8 ones, okay. So now one is not given like circle the one, okay, because such an example was not there, okay. Now I am giving idea about how one will be left in your example. So with the next few examples I am giving you idea about how to do the simplification of that SOP expressions using KMAP.
Okay. Now we will go for solving all examples. So first example is in front of you. Okay. So minimize the given logical expressions using K-map techniques. Okay, so here you want to minimize the given logical expressions using K-map. Now earlier you already did it with the help of Boolean laws as well as De Morgan's theorems. Now the same problem I may think it will be repeating, but no problem. Here I am giving you it with the help of K-map technology. So you want to minimize it. So expression is given y is equal to a b bar c bar plus a bar b bar c plus a b bar c plus a bar b bar c bar. Okay, right? So if you are going to if it will be very good for you if you write it along with me in on your rough book, so you will get an idea how to solve it. Okay, because it will give you a practice. Okay, though it will be rough, no problem. Okay, but you try to write it, so you will get an idea how you can solve it. So in MCQ based question, if such questions will be asked, so you should have that answer. Okay, so here I am giving you simple one examples that are easily reachable, that you can easily solve it. Okay, so that's why here y is equal to a b bar c bar plus a bar b bar c plus a b bar c plus a bar b bar c bar. So I'm writing with this expression. Now along with that I am giving you here to find it from the truth table what will be their values. So I hope you will have the truth table already. I have given an idea how you write it for the three variable. Okay, there are m0 m1 m2 m3 m4 m5 m7. Okay, so in that fashion you want to find out. So here SOP expressions are given, so that's why if you think about the last expression, that is a bar b bar c. Okay, the a bar b bar c means 0 0 0, so that's why in your truth table it is named as m0. Similarly, the second one term, that will be a bar b bar c. Okay, so that's why it highlight 0 0 1, so that's why it is m1. Similarly, first one expression will be 1 0 0 means a b bar c bar, so that's why it is m4. And a b bar c means m5. Okay, so here we have written the names like m0 m1 m4 and m5. अभी तक आपको ये तो समझ में आया कि yeah I can write it in this way, in this fashion. Okay, now how many variables are required? So that's why here just by observations you can able to see y is equal to that expression. So in that every term is giving you idea about only a b and c terms are present. So that's why here three variables are quoted, so that's why I write here only there are three variables are given. Okay, now we will draw the k-map for three variable. So we require a k-map with 2 raised to 3 means 8 cell. So I'm giving you that truth table. Okay, so that's why the truth table is now in front of you. Okay, so here on the screen you can see in the center a truth table will be there. For I hope already we are aware with this kind of k-map. So that's why a is below that bottom slanted line and bc will be an upside. ओके, सो दैट्स वाई इन थ्री वेरिएबल्स का हमने के मैप यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. उसके साथ साथ ए बार ए रो वैल्यू लिख दी और कॉलम की वैल्यू लिखी है बी बार सी बार. सेकंड कॉलम की है बी बार सी, थर्ड कॉलम की है बी सी और फोर्थ कॉलम की है बी सी बार. राइट, तो अभी आपके पास सभी वैल्यूज है. ओके, मैंने कॉलम की वैल्यू भी लिख दी है 0 0 0 1 1 1 1 0. रो की वैल्यू भी लिख दी है 0 और 1. उसके हिसाब से आपको सेल फिल करने हैं, तो मैंने सेल भी ऑलरेडी फिल कर दिए 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सेल वैल्यू भी उसमें लिख दी. नाउ
फ्रॉम द एक्सप्रेशन, ओके, द प्रॉब्लम जो आपको दिया है y इज इक्वल टू दैट, ओके, उसमें से आपने फाइंड किया है m0, m1, m4 और m5, तो वहां पर 1 पुट आउट करिए और रेस्ट टर्म्स विल बी 0. सो जस्ट आई एम पुटिंग इट, ओके, check it whether I put it right or wrong. बराबर है आपके सामने अभी यहाँ पर m0 का वैल्यू लिखा है 1, m1, देन m4 और m5, तो सारे यहाँ पर पहले और दूसरे कॉलम में ही आ गए. तो पहले और दूसरे कॉलम में चारों वंस आ गए और थर्ड और फोर्थ कॉलम 0 0 0 0 है, यानी सेल नंबर 3, सेल नंबर 2, सेल नंबर 6 और सेल नंबर 7 की वैल्यूज है 0 और सेल नंबर 0 1 4 5 की वैल्यूज है 1. नाउ क्या मुझे बता सकोगे अभी यहाँ पर वंस का ग्रुप कैसे करूं? यहाँ 2 वंस का ग्रुप करूं या 4 वंस का ग्रुप करूं? ओके, विच विल बी बेटर वन? रूल क्या लिखा था? ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां पर आपको वंस वहां ग्रुप करने हैं. ओके, तो यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं यहाँ पर 4 वंस यहाँ पर ले रहा हूं. सो दैट्स वाई 4 वंस यहाँ पर ले लेता हूं. तो यहाँ मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, तो 4 वंस के लिए ग्रुप कर दिया. अभी तक यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके, कोई डाउट भाई यहाँ? ओके, अभी यहाँ तक हमने यहाँ क्या क्या किया वो फिर से रिव्यू कर रहा हूं. ओके, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, हमने क्या किया? एक्सप्रेशन लिया y इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन. ओके, उसमें से हमने एक्सप्रेशन से वैल्यू फाइंड आउट की टर्म्स की. पहली टर्म की वैल्यू है m4, सेकंड टर्म की है m1, थर्ड टर्म की है m5 और फोर्थ टर्म की वैल्यू है m0. वेरिएबल फाइंड आउट किए, यहाँ पर 3 वेरिएबल यह फाइंड हो गए. उसके हिसाब से हमने 2:3 यानी 8 सेल का के मैप यहाँ पर ड्रॉ किया. ठीक है, 8 सेल का के मैप ड्रॉ कर दिया. उसके वेरिएबल यहाँ पर स्लैंटेड लाइन के अबव और बिलो डाल दिए. ओके, रो वेरिएबल डाल दिए, कॉलम वेरिएबल पास आउट किए, उनके वैल्यूज भी लिख दिए, सेल वैल्यू भी लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पर वैल्यू पुट आउट कर दी m0, m1, m4 और m5 की. तो यहाँ ये वैल्यू भी आ गई. इसके साथ हमने यहाँ पर उसको ग्रुप भी कर दिया. अभी ग्रुप करने के बाद आपने को यहाँ पर वैल्यू लिखना है. यहाँ पर रो और कॉलम की एक्सप्रेशन यहाँ पर चारों वंस के लिए लिखना है. ऑलरेडी ये भी बता दिया है. सो दैट्स वाई 4 वंस के लिए आपके पास वैल्यू आएगी. यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ ए बार और ए, ओके, ए बार और ए रो में वैल्यू है ए बार और ए. ओके, सो दैट्स वाई ए बार और ए चेंज हो रहे हैं. तो मैंने ऑलरेडी कहा था क्या रूल? सिमिट्री फॉलो करो, असिमिट्री डिनाई करो. तो ऑलवेज सिमिट्री को यहाँ पर सिमिट्रिकल वेरिएबल ही लेने हैं और सिमिट्रिकल वेरिएबल छोड़ देने हैं. तो ए बार यहाँ पर आ रहे हैं तो हम उसको छोड़ देंगे. बाद में हम कॉलम्स के तरफ जाएंगे. कॉलम्स में अगर देखते हैं तो पहला और दूसरा ही कॉलम है. पहले कॉलम की वैल्यू है, पहले कॉलम के वेरिएबल है बी बार सी बार और दूसरे कॉलम के वेरिएबल है बी बार सी. तो बी बार यहाँ कॉमन वेरिएबल है, सी और सी बार यहाँ पर असिमेट्रिकल वेरिएबल है, यानी वो यहाँ रिपीटिंग वेरिएबल नहीं है. तो सी प्लस सी बार अगर करोगे तो वो 1 हो जाएगा. इस वजह से बी बार दोनों में कॉमन है. तो माय फाइनल एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू बी बार. गेटिंग एवरीवन? तो यह मेरा फाइनल आंसर रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू बी बार. सो दैट्स व्हाई आपको जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन का आंसर क्या रहेगा? y इज इक्वल टू बी बार. हाँ, अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको वेरिएबल के द्वारा भी आंसर फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक्स बताई है. अगर किसी को ऐसा लगा तो वो एक्सप्रेशन लिखिए. y इज इक्वल टू पहले 0 वेरिएबल के लिए, सेल के लिए, 1 नंबर के सेल के लिए, 4 नंबर के सेल के लिए और 5 नंबर के सेल के लिए, और वहां पर बुलियन अलजेब्रा का लॉ अप्लाई करो. ओके, बट उसमें आपको मेथड टेडियस हो जाएगा. ओके, वहां पर आपको प्रोसेस लेंदी हो जाएगी. सो आई होप यू गॉट द आइडिया from my okay, whatever I have given you that okay idea. Okay, आपको समझ में आया होगा शायद. Okay, so I hope you can get a clear idea about how to judge common variables. Okay, और कॉमन वेरिएबल ही आपका आंसर रहेगा. जो कॉमन वेरिएबल नहीं है
वो आंसर नहीं रहेगा. सो दैट्स वाई यहाँ पर कॉलम वेरिएबल जो है वो बी बार सी बार है, पहले के और दूसरे कॉलम के वेरिएबल है बी बार सी. तो इसमें आपका यहाँ पर कॉमन वेरिएबल हम लेंगे, अनकॉमन वेरिएबल छोड़ देंगे. तो यहाँ आंसर आएगा y इज इक्वल टू बी बार. राइट. अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल इस तरह रहेगा पहला. ओके, मैं अभी और एक एग्जाम्पल यहाँ पर जा रहा हूँ, सेकंड एग्जाम्पल में जाता हूँ. सेकंड एग्जाम्पल लीजिए. ओके, y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी. ओके, लिखा आपने. ओके, y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी. मिनिमाइज द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप. ओके, आपको ये रिडक्शन करना है, मिनिमाइज करना है. सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर से एक्सप्रेशन लिख रहा हूं. सेम एक्सप्रेशन आई रिटर्न, बट हियर अलॉन्ग विद दैट आई एम गिविंग यू हियर द नेम. ओके, कौन सी टर्म है ट्रुथ टेबल से. तो ए बार बी बार सी आती है m0. सेकंड आती है टर्म ए बार बी सी बार, यह आएगी m2. थर्ड टर्म आएगा ए बार बी सी, यह आएगी ट्रुथ टेबल से m3. और फोर्थ टर्म आएगा ए बी बार सी. ओके, ये आएगा m5. कौन कौन से टर्म मिले आपको? m0, m2, m3 और m5. चलिए, अभी अपने पास यहाँ पर कितने वेरिएबल है? यहाँ y में कुल मिलाकर 3 वेरिएबल है. राइट, a b c. a b c के अलावा और कोई वेरिएबल है क्या आपके पास? आंसर रहेगा नहीं. सो दैट्स व्हाई दीज आर 3 वेरिएबल. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ 3 वेरिएबल के मैप. सो 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पर ड्रॉ किए हैं. राइट, उसमें मैंने स्लैंटेड लाइन के बिलो लिखा है ए, स्लैंटेड लाइन के अबो लिखा है बी सी. ओके, रो की वैल्यूज है ए बार. पहले रो की वैल्यू है ए बार इज इक्वल टू 0 और दूसरा रो की वैल्यू है ए इज इक्वल टू 1. राइट. सेकंड, पहले कॉलम की वैल्यू है, यहाँ पर वेरिएबल है बी बार सी बार, वैल्यू है 0 0. सेकंड कॉलम के वेरिएबल है बी बार सी, वैल्यूज है 0 1. थर्ड कॉलम की वेरिएबल है बी सी, वैल्यूज है 1 1. फोर्थ कॉलम की वेरिएबल है बी सी बार, वैल्यूज है 1 0. सेल के नंबर लिखे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7. होप एवरीवन इज गेटिंग. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज एक एक करके m0, m2, m3 और m5 पुट आउट कीजिए. ओके, मैंने यहां पर वैल्यूज पुट आउट किए हैं. तो जहां m0 है वहां 1 लिखा, m2 पर 1 लिखा, m3 पर 1 लिखिए और m5 पे 1 लिखिए. राइट. सो आपको टोटल 4 1s आएंगे 0th सेल पर, 2 सेल पर, 3 सेल पर और 5th सेल पर. ओके, और 1 4 6 और 7 सेल पर 0 रहेगा. राइट. तो इस तरह आपको यहां सेल की वैल्यू रहेगी. अभी यहां ग्रुप करना है. क्वेश्चन, हाउ टू डू ग्रुपिंग. ग्रुपिंग कैसे करोगे? ओके, यहां ग्रुप करने के लिए आपके पास यहां पर क्या आइडिया रहेगी अभी? ओके, तो देखिए अभी यहां पर
मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड जो वंस है वह ग्रुप हो सकता है. ओके, सो दैट्स वाई मैं सेकंड और थर्ड को ग्रुप करता हूं. ओके, सेकंड और थर्ड को ग्रुप कर लेता हूं. तो ग्रुप किया मैंने यहां पर. कोई डाउट? ओके, अभी आगे का बताइए और कौन सा ग्रुप हो सकता है. शायद आपने एक रूल पढ़ा है, राउंडिंग हो सकता है. कैसा? आप यहां पर पूरे सर्कल यानी के मैप को राउंड कर सकोगे. राउंड बोले तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, सेकंड सेल और जीरोथ सेल को यहां पर चूज कर रहा हूं. सी. ओके, तो सेकंड और थर्ड, सेकंड और जीरोथ सेल यहां पर ग्रुप कर रहा हूं. ओके, तो यहां सेकंड और जीरोथ सेल ग्रुप कर लिया. ओके, तो इस तरह भी आपको यहां ग्रुपिंग करते आएगा. और जो लास्ट फिफ्थ सेल में बच गया उसको मैंने सर्कल कर दिया. ओके, जो लास्ट बच गया वह फिफ्थ सेल, उसको सर्कल कर दिया. कितने हो गए अपने पास ग्रुपिंग? 1, 2 और 3. ओके, थर्ड इंडिपेंडेंट है. अभी एक्सप्रेशन लिखनी है, एक्सप्रेशंस. ओके, तो हमने यहां पर फाइनल वैल्यू लिखनी है. सो दैट्स वाई फाइनल वैल्यू लिखते हैं. देखिए यहां फाइनल वैल्यू लिखेंगे. तो पहला जो ग्रुप किया था वह ग्रुप का वैल्यू आएगा यहां पर. अगर थर्ड और फोर्थ कॉलम अगर देखोगे, थर्ड और फोर्थ कॉलम में रो ए बार ही कॉमन है. रो ए बार ही कॉमन है. ओके, थर्ड और फोर्थ कॉलम के जो ग्रुप है वन से थर्ड और फोर्थ कॉलम यानी सेकंड और थर्ड नंबर का सेल. सेकंड का वैल्यू है, सेकंड का यहां पर वेरिएबल है बी सी बार और थर्ड सेल का वेरिएबल है बी सी. ओके, इसका रो है कॉमन ए बार, तो इसलिए ए बार लिख लिया. लेकिन यहां दो वेरिएबल है, लेकिन वहां सी और सी बार चेंज हो रहा है, लेकिन बी कॉमन है. तो कॉमन वेरिएबल मैंने यहां चूज किया और जो अनकॉमन है वह छोड़ दिया. तो मुझे यहां बी कॉमन है, तो बी कॉमन ले लिया. गेटिंग एवरीवन? आ गया? तो आंसर क्या है मेरा? ए बार बी. अभी समझ में आया ना ये सभी को? गेटिंग? कि लिख के दूं? ओके, क्या था रो? रो में था ए बार. ए बार के लिए यहां पर ये लेता हूं, इस तरह का सिंबल. और कॉलम है मेरे पास कौन से? बी सी और बी सी बार. ओके, तो यहां सी सी बार निकल जाएगा. ओके, तो अगर सी सी बार अगर निकल गया तो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ बी. ओके, आई विल गेट फाइनल आंसर विल बी बी, क्योंकि सी और सी बार का यहां पर अगर मैं एडिशन करूं तो रिजल्ट आएगा सी प्लस सी बार इज 1. रिजल्टेंट इज बी. सो आई गेट फाइनली व्हाट? ए बार बी. तो ये आंसर मैंने यहां लिखा. राइट? सेकंड लेते हैं. 0 नंबर का सेल और 2 नंबर का सेल. 0 नंबर का सेल में और 2 नंबर के सेल में फिर से ए बार कॉमन है. राइट? तो मैं वह एज इट इज लिखता हूं. और कॉलम लिखते हैं. कॉलम में ओके, जीरोथ सेल के कॉलम है बी बार सी बार और सेकंड के हैं, सेकंड सेल के कॉलम है, कॉलम के वेरिएबल है बी सी बार. ओके, अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां सी बार कॉमन है
और बी बार अनकॉमन है। क्या आंसर आएगा मेरा? मेरा आंसर रहेगा सी बार। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? गेटिंग एवरीवन? ए बार सी बार, जो मैंने आंसर यहां पर लिखा है। ओके, गेटिंग एवरीवन? सभी को समझ में आया? और लास्ट यहां पर जो एन सर्कल क्या है, तो सर्कल में आपको रो और कॉलम एज इट इज लेने हैं, उसमें वहां कॉमन अनकॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक ही है। 5 नंबर का सेल है, उसका वेरिएबल रो वेरिएबल रहेगा ए और कॉलम वेरिएबल रहेगा बी बार सी। तो इसलिए यहां पर वह डायरेक्टली यहां ले लिया। सो दैट्स वाई वह आपको यहां वैल्यू रहेगी ए बी बार सी। ओके, फॉर सर्कल। ओके, फॉर सर्कल के लिए आपको आंसर रहेगा ए बी बार सी। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा इस तरह। पहला रहेगा ए बार सी बार, सेकंड रहेगा ए बार बी, और थर्ड रहेगा ए बी बार सी। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? होप एवरीवन गेटिंग दिस। समझ में आया सभी को? सेकंड एग्जांपल सर्कल का भी मैंने यहां पर कवर कर लिया। ओके, आई होप विद दिस एक्सप्लेनेशन you will get how to find minimize logical expressions using K-map। कर सकोगे ना? ओके, चलिए अभी नेक्स्ट में चलता हूं और एक एग्जांपल देता हूं। अभी यहां पर मैंने एक्सप्रेशन नहीं दी है। ओके, यहां हमने ऑलरेडी जैसा न्यूमेरिकल्स फॉर्म में एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखी थी, वैसी फॉर्म में एक्सप्रेशंस अगर दी रहेगी तो एग्जाम्पल है हियर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल रीड कर रहा हूं, लिखेंगे तो फॉर द लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो draw the K-map and obtain the simplified logical expressions। ओके, आपको एक्सप्रेशन दी है y इज इक्वल टू समेशन m, स्मॉल m दिया है, यानी आपको मिन टर्म के लिए दिया है, एसओपी के लिए दिया है, इन ब्रैकेट 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15। राइट, न्यूमरल्स देख के रखे, नंबर है, नंबर के द्वारा आपको यहां पर डायरेक्ट सेल में वैल्यू पुट आउट करना इजी हो गया, आपको फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि आपको ऐसा एक्सप्रेशन इजीएस्ट रहेगा, यानी यहां पर आपको डायरेक्टली मिन टर्म्स के वैल्यू देके रखे हैं जो हम ट्रुथ टेबल से लेते हैं, यानी वही आपको जस्ट पुट आउट करने हैं सेम सेल्स में। ओके, तो एक्सप्रेशन रहेगी y इज इक्वल टू समेशन m इन ब्रैकेट 1, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। राइट, अभी इसके लिए आपको कौन सा ट्रुथ टेबल, कितने वेरिएबल का ट्रुथ टेबल लगेगा? राइट, अभी यहां पर 1 to 7 था तो ठीक है, 3 वेरिएबल आर इनफ, बट बिहाइंड 7 है तो 9, 11, 13 और 15 भी है, तो 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल अपने को के मैप रिक्वायर्ड रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर 4 वेरिएबल के मैप। राइट, सो दैट्स व्हाई वी विल ड्रॉ 4 वेरिएबल के मैप। सो 4 वेरिएबल का के मैप आपके सामने यहां पर ड्रॉ किया मैंने। ओके, यहां टोटल 4 वेरिएबल के के मैप में 16 सेल है, स्लैंटेड लाइन के नीचे ए बी, स्लैंटेड लाइन के अबव सी डी। 4 वेरिएबल मैंने इस तरह चूज किए, ए बी सी डी। उसी के साथ साथ रो के वेरिएबल लिखे मैंने, ए बार बी बार
उसकी वैल्यूज है 0 0। सेकंड रो की वैल्यू है यहाँ पर ए बार बी 0 1, थर्ड रो ए बी 1 1 और फोर्थ रो है ए बी बार 1 0। सिमिलरली कॉलम है सी बार डी बार 0 0, सेकंड कॉलम है सी बार डी 0 1, थर्ड कॉलम है सी डी 1 1 और फोर्थ कॉलम है सी डी बार 1 0। सेल की वैल्यू लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। सभी वैल्यू लिख लिए, के मैप ड्रॉ कर लीजिए। लिख लिए, ड्रॉ कर लिया आपने के मैप। नाउ यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज। ओके, तो 1 5 7 9 11 13 और 15 यहाँ पर जस्ट आपको वही सेल यूज करना है, आपके लिए यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई 1 वहां पर 1 सेल में पुट आउट करोगे, 5 5th नंबर के सेल में पुट आउट करोगे, 7 नंबर के सेल में 1 लिखोगे, 9 नंबर के सेल में 1 लिखोगे। आई होप इन द सेम फैशन आई रिटर्न हियर। ओके, देखो भला समझ में आया क्या? 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह मैंने सभी सेल्स में वैल्यू पुट आउट की। रेस्ट सेल में जहां वैल्यू नहीं है वहां 0 0 0 पुट आउट कर दो। ड्रॉ करिए फटाफट। जस्ट आपको यहाँ पर जो नंबर दिए हैं वो नंबर वाइज सेल दिए हैं, तो यहाँ आपको सेपरेट कुछ एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ इस तरह का रहना चाहिए। बहुत इजी है। ओके, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप यहाँ पर उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, नो नीड ऑफ टेकिंग पेन ओके वाइल सॉल्विंग इट। ओके, जैसा आप दूसरे कोई सब्जेक्ट के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो वैसा वहां पर यहाँ पर आपको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ इजीली आपको जस्ट टेबल बनाना है, टेबल में लिखना है वैल्यू, खत्म हो गया सभी का। सभी ने वैल्यू पुट आउट कर दी, 1 5 7 9 11 13 15। ओके, अदर सेल में 0 रख दो। चलिए अभी ग्रुप करते हैं। ग्रुप में बताओ, सामने सामने एग्जांपल है आपके, यहाँ पर ग्रुपिंग करना बहुत इजी है। ओके, पहला ग्रुप करेंगे हम 4 1s के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर सी बार डी जो है, जो कॉलम है उसमें टोटल 4 का 1s का कॉलम है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैसा का वैसा ही ले लेते हैं। आ गया सामने, मैंने आंसर दे दिया यहाँ पर। ओके, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वह है सी बार डी, क्योंकि रो की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। पहला रो का वैल्यू है ए बार बी बार, सेकंड रो की वैल्यू है ए बार बी, थर्ड की वैल्यू है ए बी, फोर्थ रो की वैल्यू है ए बी बार। सो ईच एंड एवरी टर्म विल गेट कैंसल्ड। ओके, क्योंकि बी प्लस बी बार ए प्लस ए बार ये खुद कैंसल हो जाएंगे, इसलिए अपने पास फाइनली बचेगा सी बार डी। तो सी बार डी इज अ कॉमन column value, so that's why that column common value is taken in consideration as an answer. So that's why C bar D is a answer of first term. Now चलिए अभी अपने पास 3 1s बचे हैं, अभी ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करेंगे चलिए बताइए, कौन बताएगा?
ओके, एक बच्चे ने बोला यहाँ पर हम 4 वंस का ग्रुप कर सकते हैं स्क्वायर। चलिए देखते हैं। इस तरह ग्रुप किया, इस तरह ग्रुप किया, चलेगा क्या? देखिए देखिए, हाँ या ना, बराबर देखिए, समझ में आया क्या? थर्ड रो ए बी, फोर्थ रो ए बी बार, सेकंड कॉलम सी बार डी और थर्ड कॉलम सी डी। कॉमन वैल्यू लीजिए। चलो पहले रो को कंसीडर करते हैं। रो में कंसीडरेशन, लिखता हूं यहां रो ए बी थर्ड रो है और फोर्थ रो का है ए बी बार, राइट। तो अभी यहां पर अगर आप यहां पर इनका एडिशन करोगे, ओके, तो अपने को यहां पर मिल जाएगा ए इन ब्रैकेट बी प्लस बी बार। ओके, b plus b bar is directly proportional to 1, so I say here only a will be left, right? So a will be left in row. Similarly कॉलम के लिए लेते हैं, कॉलम में लेते हैं, सेकंड कॉलम का वैल्यू है c बार d और नेक्स्ट कॉलम का वैल्यू है सी डी, राइट। अब हम यहां पर d अगर कॉमन लेंगे तो d इन ब्रैकेट c बार प्लस c आ जाएगा, अपने पास आंसर रहेगा d। What will be answer? A and D. So that's why the second term is AD, right? Anyone have doubt? I hope everything is clear. कोई डाउट भाई यहाँ? ओके, नाउ अभी और यहां पर एक कॉलम, यहां पर एक वंस बचा है, 7 सेल बच गया, 7 सेल। क्या उसको कहीं ग्रुप में ले सकते हैं? वहां पर उसका कहीं से ग्रुपिंग हो सकता है। अगर आपने इस तरह ऐसा किया तो 5 7 13 15, 5 7 13 15 इस तरह का अगर यहां पर और एक स्क्वायर किया तो चलिए करते हैं वैसा। 5 7 13 15, ओके, इसका आंसर मिलेगा मुझे जैसा मैंने अबव एक्सप्रेशन फाइंड करके दिया, तो आंसर आएगा बी रो से आएगा, डी कॉलम से आएगा। सो मुझे थर्ड टर्म मिला है बी डी। समझ में आया कि फिर से सॉल्व करा दूं? बी देखिए, रो में अगर आप लेते हो एक्सप्रेशंस, ए बार बी, सेकंड रो की वैल्यू, थर्ड रो की ए बी, राइट। सेकंड रो की वैल्यू थी ए बार बी, थर्ड रो की है ए बी। कॉमन वैल्यू लीजिए बी इन ब्रैकेट ए प्लस ए बार, आंसर मिलेगा मुझे बी। सिमिलरली कॉलम लेते हैं, कॉलम की वैल्यू है यहां पर सेकंड कॉलम की है, जैसा अबो इसमें बताया मैंने, मेरे ख्याल से अबो में मैंने डायरेक्ट बताया, तो ये कॉलम का है तो डायरेक्टली वही है, उसके लिए कोई मुझे चेंज नहीं करने की जरूरत है क्योंकि वही आंसर रहेगा। देखिए सी बार डी और सी डी थर्ड कॉलम की, सो दैट्स वाई सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा, रेस्ट विल बी डी,
फाइनल आंसर विल बी BD. सो आई गॉट थर्ड सेल के लिए BD, राइट. सो मैं इस तरह तीनों एक्सप्रेशन यहां फाइंड कर लिए. ओके, तीनों एक्सप्रेशन यहां पर फाइंड कर लिए. पहली एक्सप्रेशन मिली C⁻D, सेकंड मिली AD, थर्ड मिली BD. गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, आ गया समझ में? कोई डाउट भाई? ओके, होप एवरीवन गॉट द आइडिया. जिसको नहीं समझा वो फिर से रिपीट देखो, राइट. चलिए और एक देख लेते हैं, और एक एग्जांपल देता हूं. नाउ फिफ्थ एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू. फाइंड आउट द मिनिमल एक्सप्रेशंस फॉर द फंक्शन. अभी यहां वेरिएबल भी दे के रखे हैं आपको ब्रैकेट में. y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a, b, c, d इज इक्वल टू, लास्ट एग्जांपल में नहीं था ना, राइट, इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 9 12, राइट. सॉल्यूशंस लीजिए. सॉल्यूशंस में लिखा मैंने सेम एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a b c d इज इक्वल टू समेशन m स्मॉल है, मिन टर्म है 0 2 4 6 8 9 12. Now how many variable are here? Just by watching, okay, you will get only 4 variable, so that's why 4 variable का k map required रहेगा. चलिए फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, 4 वेरिएबल का k मैप यहां पर सामने आपको पेश कर रहा हूं. आ गया? तो 4 वेरिएबल का k मैप आपके सामने है. ABCD स्लैंटेड लाइन के अबो नीचे, अबो और ऊपर लिखिए. बॉटम साइड में AB, अबो साइड में CD. अगर किसी को ऐसा लगा कि सर AB हमेशा आप लोअर साइड में लेते हो, अगर मैंने AB अबो साइड में लिया तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल सकता है. ओके, AB अबो साइड आया, CD बिलो साइड आया तो भी चलेगा, चलता है. लिखो सभी की सेल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. बाजू में रो वेरिएबल लिखिए, कॉलम वेरिएबल लिखिए. हो गया? नाउ एक्सप्रेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. हुआ नहीं अभी तक? हो गया? नाउ एक्सप्रेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. y इज इक्वल टू ABCD इज इक्वल टू समेशन 0 2 4 6 8 9 12. डायरेक्ट नंबर देखे रखे हैं. 0 2, 0 के लिए 1, 2 के लिए 1, 4 के लिए 1. तो जस्ट आपको सेल नंबर भी पता है, सेल की वैल्यू भी पता है. तो 0 सेल की वैल्यू है 1, सेकंड सेल की वैल्यू है 1, 4 नंबर के सेल की वैल्यू है 1, 6 की, 8 की, 9 की, 12 की 1 है. सभी वैल्यू पुट आउट करो. सभी वैल्यू पुट आउट कर लिए मैंने. सभी वैल्यू पुट आउट करने के बाद आई गॉट द के मैप लाइक दिस. फिर से ड्रॉ मत करो, उसी में वैल्यू पुट आउट करो. ओके, 0 2 4 6 8 9 12. रेस्ट में, रिमेनिंग में 0 पुट आउट करो. सब में 0 पुट आउट कर दिया. जो आपको गिवन है उसमें 1, जो गिवन नहीं है उसमें 0. हाँ, हो गए? फटाफट, क्विक 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 क्विक.
हो गया। नाउ करो, ग्रुपिंग करो, बताओ क्या। पहला कॉलम में सारे वंस का ग्रुप कर लिया जाए। ओके, पहले कॉलम का सी बार डी बार का जो वंस है, यानी पहला कॉलम है, उसका सभी का ग्रुप कर लो। ओके ओके, कर लिया कर लिया। देखिए पहला कॉलम ग्रुप कर लो। ओके, पहले कॉलम के लिए ग्रुपिंग कर लिया मैंने। ग्रुप करने के बाद वैल्यू निकालो। देखो सभी रो की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए एक भी रो की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, सिर्फ 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 कॉलम की वैल्यू ली जाएगी, सी बार डी बार। तो आई गॉट द फर्स्ट टर्म सी बार डी बार। देखो भला समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? हाँ, अभी नेक्स्ट फाइंड करो कि दूसरा कौन सा ग्रुप ले सकते हो। आपके सामने बचे हैं 2 और 6 नंबर के सेल। 2 और 6 नंबर के सेल आपको ग्रुप करना है। ओके, हो गया। हाँ, चलो अभी देखिए, अभी सेकंड ग्रुप कैसा करेंगे। सेकंड ग्रुप कैसा करेंगे? 2 और 6 नंबर का सेल है, क्या उसको इंडिविजुअल करना या मैक्सिमम? अपना रूल क्या है, मैक्सिमम। अगर रैपिंग हुआ के मैप को तो चलेगा, रैपिंग हो सकता है क्या? 2 और 6 और 0 और 4 में हो सकता है क्या, या सिर्फ 2 और 6 में करना? 2 और 4 में अगर करोगे तो ये छूट जाएंगे। अगर मैक्सिमम कर सकते तो देखिए 2404 में कर लेते हैं शायद। चलिए ट्राई तो करते हैं। ओके, आ गया। अगर इस तरह किया तो चलेगा, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप इस तरह भी कर सकोगे, कोई ये नहीं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया ना? हो सकता है 2 6 ओके 0 और 4 में, राइट। अभी रो और कॉलम में जैसा मैंने बताया, तो रो और कॉलम में, रो में देखिए ए बार बी बार, और फर्स्ट रो में है ए बार बी बार, सेकंड रो में है ए बार बी। तो यहां ए बार कॉमन है, बी और बी बार अनकॉमन है, सो दैट्स वाई बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, जैसे मैंने अबव में एग्जांपल में बताया ना वैसा। तो ए बार रो में मिलेगा। और कॉलम के देखोगे, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में सी बार डी बार पहले कॉलम की वैल्यू है, फोर्थ कॉलम की वैल्यू है सी डी बार। तो कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन बचा? सी सी बार 1 हो गया, डी बार कॉमन आ गया, सो दैट्स व्हाई आंसर इज ए बार डी बार, राइट। बहुत इजी है, जस्ट इट इज ऑब्जर्वेशनल जॉब, नॉट मच डिफिकल्ट। रोने का नहीं। प्रॉब्लम अगर एमसीक्यू में आए तो रोने का नहीं कि भाई इतना टफ क्यों डाला। ओके, क्योंकि इट इज ऑब्जर्वेशनल, नॉट मच मच डिफिकल्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी। ओके, सो दैट्स व्हाई आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। और हमने कम से कम 20-25 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से हो गए होंगे अभी तक, राइट। 20 या 25 एग्जाम्पल के द्वारा अपन ने सॉल्व किया, राइट। नाउ थर्ड, अभी बच गया एक ही बच गया, 9 नंबर का सेल। वो एक सिंगल है, अकेला है, अकेला है, उसको दुकेला करेंगे। ओके, अकेला है, उसको हम और एक सेल के साथ मैच करेंगे, क्योंकि एक मर्ज से ज्यादा दो मर्जिंग, दो की ग्रुपिंग बेटर रहेगी। सो दैट्स वाई अकेला मत रखो उसको, सो दैट्स वाई उसको दूसरे में ग्रुप कर लो। वेरी गुड, दूसरे में ग्रुप कर लिया। उसका रो का वैल्यू है ए बी बार और कॉलम में आता है ओनली सी बार, सो दैट्स व्हाई ए बी बार सी बार। थर्ड टर्म आ गई, कोई डाउट? थर्ड टर्म मिल गई। तीनों टर्म यहां पर आंसर में लिख लो। फाइनली वी विल गेट y इज इक्वल टू सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार डी बार। वेरी गुड वेरी गुड। आ गया ना सबको, समझ में आ गया? now the last point of this chapter is
that we are going for understanding, that is don't care. Now in case यहाँ पर don't care अगर कंडीशन आती है तो राइट चलिए डोंट केयर क्या होता है उसको कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. पहले सब थियरी बताता हूं, बाद में हम उसमें जाते हैं. राइट नाउ व्हाट इज डोंट केयर कंडीशन? समटाइम्स we come across cases in which certain input combinations never occur. ओके ऐसी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि वहां पर हमें कोई इनपुट का कॉम्बिनेशन ऑकर नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इन बीसीडी सिस्टम 1010 एंड 121111 आर नेवर यूज. ओके बीसीडी में हम ये यूज नहीं करते हैं एंड आर नोन एज cannot happen terms. Okay and we are saying these are not happen terms, so that's why ऐसे सिचुएशन में अगर वो यूज ही नहीं होते हैं तो क्या करना? Also for some function the output corresponds to certain combinations of input do not matter. Okay that may be 1 or 0. अगर ऐसी कुछ functions है कि उसमें output corresponds to certain combinations of input do not matter. Okay for SOP equation we represent the combination of input variable which produces a high output by 1 and the remaining cells are 0. ओके एसओपी में हमने देख लिया भाई अगर यहाँ पर इनपुट का वेरिएबल है which will produces high output by 1 and remaining cells are considered as 0. बट यही POS equations में उल्टा हो जाता है. So whereas for POS equation the combinations of input which produces a low output are represented by 0 and on the QI map the remaining cells are 1. Right? Got my point? तो आप SOP और POS equation में इस तरह लेते हो. So it is not always true that the cell not containing ones may contain 0 as some combinations of input variable do not occur. Right? It is not, I am repeating again, it is not always true that the cell not containing ones may contain 0 as some combinations of input variable do not occur. Sometimes for some functions the output correspond to certain input combination do not matter. In such conditions we may assume 0 or 1 as output for each of these combination. Such conditions are known as don't care conditions and are represented by X, capital X, in the corresponding cell. Right? अगर आप वहां पर ट्रुथ टेबल देखे हो तो ट्रुथ टेबल में मैंने बहुत सारे बार बताया कि देखिए यहाँ पर 1 अगर आपको y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में दिया है तो उसके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशंस दिया रहता है. ओके अगर कॉम्बिनेशन वहां पर इनपुट का कॉम्बिनेशन अगर मैटर नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारा वहां डोंट केयर कंडीशन शॉर्ट कर रहे हैं. राइट so that's why it is represented by X. Okay the don't care condition are represented by D in bracket. Right चलिए अभी यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो एग्जाम्पल यहाँ पर शॉर्ट क्या है? एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई द फंक्शन f of a comma b comma c comma d is equal to summation m in bracket 1 3 7 11 12 15. ओके प्लस डोंट केयर का कंडीशन दिया है यहाँ पर d इन ब्रैकेट 0 to 5. ओके तो अगर आपको इस तरह का अगर यहाँ पर फंक्शन देके रखा है उसमें 1 3 7 11 15 ही यहाँ पर वैलिड है लेकिन वहां आपको कहा कि भाई ये सॉल्व करते समय आपको डोंट केयर कंडीशन लीजिए तो डोंट केयर 0 to 5 है तो इस तरह आपको लेना है तो आप इस तरह ले सकोगे. ओके तो मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली यहाँ पर अभी कितने वेरिएबल है टोटल 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल लिया के मैप लिया. ओके कोई डाउट यहाँ पर? ये 4 वेरिएबल के मैप में सभी वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 1 3 7 11 15 के लिए 1 और 0 to 5 के लिए क्रॉस यानी x. ओके तो मैं ये वैल्यू पुट आउट कर देता हूं.
आ गई सभी को? ओके, मैंने 1 3 7 11 और 15 के लिए वैल्यू पुट आउट कर दी 1 और 0 to 5 के लिए x लिख दिया। ओके, अभी इसमें से हमें यहां पर आउटपुट एक्सप्रेशन निकालनी है। ओके, यहां पर वंस का ग्रुपिंग करो, वंस का ग्रुपिंग करेंगे तो ये C और D जो कॉलम है उसमें ग्रुपिंग हो सकता है, तो मैंने यहां पर C और D का ग्रुपिंग कर लिया। कोई डाउट? नाउ अभी यहां पर इसका फर्स्ट टर्म मिल गया मुझे CD, क्योंकि रो की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। आई होप नाउ एवरीवन इज गेटिंग, एवरीवन इज क्लेवर। ओके, एवरीवन इज नाउ गेटिंग एवरीथिंग, बिकॉज सभी को यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हो गए, तो यहाँ पर कॉमन और अनकॉमन टर्म यहाँ पर फाइंड करना नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पर CD मेरा यहाँ पर आंसर आ गया फर्स्ट टर्म के लिए। सेकंडली मैं यहाँ पर और कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेता हूं, तो डोंट केयर के साथ लीजिए। ओके, तो यहाँ डोंट केयर के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो मैंने रो यहाँ पहला रो चूज किया और उसमें 2 1s है और 2 x है, तो उसमें मैं यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। तो इस तरह मुझे यहाँ पर रो में आपको a बार b बार मिल जाएगा, लेकिन कॉलम में यहाँ पर अनकॉमन वैल्यू है, इस वजह से कॉलम से कोई वेरिएबल नहीं मिल सकेगा, रो से सिर्फ a बार b बार, इसलिए सेकंड टर्म मिल गई मुझे a बार b बार। राइट, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी माय सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डोंट केयर अगर बच रहा है, डोंट बॉदर अबाउट इट, तो यहाँ डोंट केयर कंडीशन अगर यहाँ पर बच रही है तो डोंट बॉदर अबाउट इट, हमें यहाँ पर मैक्सिमम वंस कवर करने हैं। सो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू a बार b बार प्लस CD। ओके, so I hope you got the idea about this don't care also. Okay, so I think this will be enough for your understanding. Okay, so in case if you are not getting, just text me in WhatsApp. Okay, in case if you have satisfied, don't worry, give me comment in the my video. Okay, try to give your attendance in your in the comment box of YouTube videos. Okay, so that's why I will get, yes you have watched it, as well as you are watching completely or not, that I also tracking it. Okay, those who are from outside, they can also give like and share, as well as try to subscribe my channel. So thank you very much.